नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। 16 से 27 मई तक 76वां कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर से कलाकार, मॉडल, महान फिल्म निर्माता और निर्देशकों का यहां जमावड़ा लगा है। इस बार बहुत ही खास है ये फिल्म महोत्सव, क्योंकि भारत के लिए भी फिल्मों के इस महान उत्सव में जहां दुनिया भर के फिल्मी सितारे रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं, तो भारतीय सितारों का जलवा भी कुछ कम नहीं है। चाहे बात भारतीय सिनेमा की हो या फिर भारत पवेलियन की। आज कान फेस्टिवल का 7वां दिन है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फेस्टिवल में और जानते हैं कि आज क्या कुछ रहा खास। नमस्कार, भारत एट कान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। जैसे जैसे कान फिल्म फेस्टिवल आगे बढ़ रहा है, कान की गलियों की रौनक बढ़ती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के फिल्म कलाकार कान पहुंच रहे हैं। भारतीय पवेलियन में किन महत्वपूर्ण विषयों पर आज चर्चा हुई, कौन से वो भारतीय सितारे थे जो कान में पहुंचे थे और रेड कारपेट पर चले थे, तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम, भारत एट कान। फिल्मों के मामले में भारत और फ्रांस की साझेदारी बहुत पुरानी है। दोनों ही देशों के फिल्म मेकर्स किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर आकर फिल्मों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर सकते हैं, और साथ साथ दोनों ही देशों के फिल्म मेकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों ही देशों के टैलेंट को एक उचित प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र भारतीय पवेलियन में आयोजित हुआ। क्या मंथन हुआ इस सत्र में, आइए आपको सुनाते हैं। I think for any film or project to work, in my opinion, it's nothing short of like a marriage. You need a lot. The film is a baby, is it? And the film is a baby, yeah. Marriage of many in that, and I think there's, of course, you want at the base and at the core for a co-production to have a complementarity of skills, of value add. But really, I think a sense of cooperation, coordination, and a commitment to that project. Because you're going to have ups and downs no matter what happens, right? So I think that commitment and belief at the end of the day for a creative project and for a story to see the light of day is, I think, really what's at the core of that expectation. We've been really lucky to, I think, find a partner like that. So the marriage clearly. That's great. In fact, this is something that I'd also like to tell you something about my experience here. Our co-production for Agra has really helped us, because what we are also getting is some level of technical expertise from the French company, which really helps us, because we also understand, like how he mentioned about Lunchbox, how it was very flashy, etc. All of those things. So we get that insight as well. How the project can work in both markets. Not just our market, because in our market we fill it with songs also, right? So we try to do that. Here we do understand that the sensibility has to be a lot more serious, etc. So these are things that we've also got that insight from them. There is, simple insight like, how to market your film. There is so much difference in different countries. Like, in India, we would like to market our film so much before the release of the film that it's like everybody's waiting, when is it coming home, and if something happens and the film gets delayed, people are angry about the delay of the film. Our French co-producer thinks very differently about Agra, so we've been telling him that let's market the film, let's do this, let's do that, and his answer is always, let the world premiere happen on the director's phone. That's exactly how he says it. So that's just his way of doing things. What about theatrical distribution in India? For instance, for us in France, when we have funds from France for a co-production like Chocoa in Albi+, then our funds want us to commit to a theatrical release in France. So we cannot put it directly on a global platform. It can go on a platform later on, but it has to have a theatrical release. What about the market
with that respect in India? So we don't have a specific compliance problem with that, but that said, we would like to have a theatrical release, and the release strategy is something that we'd like to also think about after the feedback from the premiere. So I'm sure that all of you are coming for the premiere, and please let us know what you think should be the release strategy of the film. But definitely, we are very keen on theatrical as well. It's a little as a subject for the Indian market. It's about a sexually repressed guy, so it's a little touchy. So we may not want to have a very wide release in terms of it will be a very specific kind of a release. But yes, we are very keen on having it. As a proportion to money, how would that? It's in the majority is in India, so it's like 60-70% is in India and 30%. भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई ऐसे इलाके हैं जहां फिल्मों की शूटिंग बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। लिहाजा भारत में असम की अगर बात की जाए तो वहां पर फिल्म इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए क्या कुछ कदम राज्य की सरकार उठा रही है और किस तरीके से असम की लोकेशंस हैं जो दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री को आकर्षित कर रही हैं, इसको लेकर एक सत्र हुआ और बताया गया कि किस तरीके से असम राज्य स्वागत के लिए तैयार है तमाम दुनिया के उन फिल्म मेकर्स के लिए शूटिंग के लिए। Technical persons they can be hired for those movies. Thank you so much. Hi everyone, I'll come to your point. Very happy to see you all, and thank you so much for joining us for this session. So first I will stick to the point where we are sitting, can be why Assam should be your next shooting destination, then I will come to your point, later. My question is that why Assam cannot be your next shooting destination, the land of Red River and Blue Mountains. It has everything. We have hills, we have plains, we have rivers leading by the mighty Brahmaputra, one of the largest river of the world. And it has lush greenery with more than 100 tea plantation states, with 7 national park, with 17 wildlife sanctuaries, well connected by airways, by train, by roadways. In Assam alone, I guess there is 6 airports, and it has everything, it has every potential over there. And I have to say that even someone has to hire in the last minute in an emergency basis, for any technical assistance. And I can assure you that there will be plenty of options available over there in terms of technicians, in terms of equipments, rentals and everything. So we have everything, and it can be, that's why I'm saying it should be. In fact, I will go one step ahead, and it should be your next shooting destination, because we have the biggest river island, smallest river island. We have one of the biggest weaving village, Walkusi, which is popularly known as Manchester of the East. We have Haflong, which is known as Scotland of the Assam. We have so many things. And while I'm saying Assam, actually, because we're representing Assam, but it should be the entire Northeast as a package, We have so much to explore over there, and it's yet to be explored to its potential. I don't think, it's been explored fully to its potential, you will get snow, you will get hills, you will get valleys, everything is there. And that's why I think, you all should come over there and explore that unexplored region of the entire Northeast, I'm saying. And the government of Assam, I think, is aggressively looking for the film tourism. And this is the right time, I think, to explore and exploit this, whatever incentive they are offering, I think this is the correct time, because they are aggressively looking for the film tourism for the last couple of years, as far as my knowledge is concerned. So I think this is the correct time for you all to go there and explore the unexplored region of the entire Northeast. And I would like to request, I'd like to take this opportunity to request all our fellow Indian filmmakers to take it as a social responsibility also to engage our Northeastern region more with the West or the South or the North, more engaged Northeastern region, because that will encourage all our local talented filmmakers,
and they will contribute to the Indian cinema. As she turns to be the newest director from actor, being an actor, she is very popular over there, and now she become a director with one movie, and she has already achieved 2 national awards as far as we know. So I would like to know one thing: how do you get the support from the government and from other personnel over there, film personalities indeed? How you get their support in a positive way? We all know India is very diverse, where culture, language, and food change every 50 kilometers or so. But today, I want to talk about my small state of Northeast India, my Assam, whose warrior had defeated the Mughals 17 times over and over again. I hail from that place where Bihu is just not a festival. It is our emotion, our pride, our lifeline. Northeast is, we have so many stories, and it's really good to see that it is really sometimes it's surprising, because it is not easy to make a film, independent films, and what I can see that lots of filmmakers, I don't know how they are benefiting financially, but still they are so passionate, from filmmakers from Northeast, and they are making movies. And last year, I am not sure, but I heard that 80 films made, so it's a very big number. She is one of the most leading filmmakers from Assam. She has been doing a lot of films, and she has been acclaimed across the world. Indeed, in India, she is doing very fine. So I just want to know about from Manju Didi. So how do you think government of Assam is very proactive on providing the facilities to all the filmmakers who wants to do some filmmaking in Assam and wants to do some shooting across the Assam? Experience in Assam is very good, because like I told that there are so many ethnic groups of people in Assam, and my only message to all the new filmmakers, that you make the films of your own story, of your land and people, because we do not have to copy Mumbai film industry, Southern film industry or Kolkata, but we have enough potentiality, enough stories. These are the stories of any human race that struggle for existence. That existence for language, for culture, for political existence. So these we have, and these can be made into beautiful, appealing, universal films. So my filmmaking, my style is always like that. I want to tell about my land and my people. उर्दू शायरों की भूमिका भारत की फिल्मों की कहानी को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। मजाज पर आधारित एक फिल्म है जिसका पोस्टर जो है वो कान में भारतीय पवेलियन में लॉन्च हुआ है। हुमा खलील उसकी लेखक हैं, और किस तरीके से ये जो उर्दू के शायर हैं, चाहे वो मजाज हो, चाहे वो जॉन एलिया हो, कैफी हो, इन तमाम शायरों की भूमिका भारतीय फिल्मों की कहानी को मजबूत करने में रही है। हुमा खलील से हमने खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। भारतीय सिनेमा में फिल्मों की जो कहानी है वो भारत की संस्कृति और भारत की ग्राउंड रियलिटी को बताती है, और कई ऐसे शायर हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर ऐसे हुए जिनकी शायरी और जिनकी कहानियों के दम पे भारतीय सिनेमा को एक कई ऊंचाइयां मिली हैं। हुमा खलील हमारे साथ मौजूद हैं, लेखक हैं, जानी मानी फिल्मों में लिखती हैं, शायर भी हैं। हुमा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन पर आपका। सबसे पहले तो यही, भारतीय सिनेमा की कहानी जिस तरीके से बदल रही है, और कान में हम देख रहे हैं यही बात हो रही है कि भारतीय सिनेमा में ग्राउंड रियलिटी होती है, भारतीय सिनेमा में कल्चर होता है। कितना इत्तेफाक रखती है? हम लोग ये देख रहे हैं कि अब सिनेमा
जो है हम लोगों का थोड़ा बदलना चाहिए कि हम वही कहानियाँ जो हैं जो कि एक मेक बिलीव वर्ल्ड की हैं उसे बताने के बजाय ऐसे लोगों की इंस्पायरिंग कहानियाँ बताएं जो असलियत में रहे हैं, और अगर वो नहीं भी रहे हैं तो कम से कम उनकी शायरी, उनकी पोइट्री, मजाज जिनके ऊपर हमने फ़िल्म बनाई है उसका मेन मकसद ये था कि वैसे तो उर्दू शायर बहुत रहे हैं और जिन्होंने बहुत कुछ औरतों के बारे में लिखा है, उनकी खूबसूरती के बारे में लिखा है, उनसे इश्क मोहब्बत के बारे में लिखा है, लेकिन मजाज एक इकलौते ऐसे शायर हैं अपने ज़माने के जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ औरत की खूबसूरती और इंटेलिजेंस दोनों पिक्चर में आती हैं। तो मजाज ने ऐसे पॉइंट पे ये शायरी शुरू करी जब ये वाला कॉन्सेप्ट कि खाली एक औरत खूबसूरत होगी या खाली एक औरत एक इंटेलिजेंट होगी, इसका एक मर्जर था। यहाँ पे दोनों को उसने एक मिला दिया कि हम एक खूबसूरत औरत भी है वो, लेकिन साथ में वो इंटेलिजेंट भी हो सकती है, वो खूबसूरत भी है, वो मेरी साथी भी है, लेकिन वो मेरे साथ लाइफ की स्ट्रगल्स में साथ में चलेगी। ये नहीं कि वो घर में बैठी होगी और जब मेरे पास फुर्सत होगी तो मैं उसके साथ जाऊंगा, बल्कि वो अगर मैं इनकलाब की स्ट्रगल में मैं इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहा हूँ फ्रीडम मूवमेंट में, तो वो मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगी। आज भारत में, हिंदुस्तान में, दुनिया में जिस तरीके से हम इंडिया पवेलियन में भी देख रहे हैं, शी शाइन की बात हो रही है, हिंदी सिनेमा में महिलाओं की भूमिका पर बात हो रही है, बहुत मंथन हो रहा है। आपको लगता है कि भारतीय सिनेमा में या मजाज के विचारों ने बहुत पहले ही महिलाओं को बहुत सशक्त और बहुत हिम्मत वाला मान चुका था? बिल्कुल बिल्कुल। मजाज ने कहा कि आओ मिलकर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर पे दुनिया पे इस तरह छा जाएं कि सब देखा करें। ही इज़ टॉकिंग टू अ वुमन कि मेरे साथ आके तुम चलो ऐसा हम इनकलाब पैदा करें। तो उस वक्त जो बाकी शायर लिख रहे थे वो ये लिख रहे थे कि मैं अपनी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में जा रहा हूँ, अभी मेरे पास इश्क माशूक़ी का टाइम नहीं है, अभी तुम घर पे बैठो, जब मैं फ्री होऊंगा तो आऊँगा। हर शायरी में ये रंग दिखाई दे रहा था। यहाँ मजाज ऐसी बात करते हैं। उर्दू शायरी बहुत रिच है देखा जाए तो, भारत में ख़ास तौर से, और भारत और कई देशों में काफ़ी पसंद किया जाता है। भारतीय सिनेमा के कंटेंट को और रिच करने में अगर देखें, भारतीय सिनेमा के टैलेंट को और दुनिया तक पहुंचाने के लिए अगर देखें, तो उर्दू शायरी कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अल्फाज में बहुत बड़ा जादू है, और चाहे मजाज हों, ये कैफ़ी हों कि साहिर हों, या बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जिनके लोग नाम जानते भी नहीं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड में। हिंदुस्तान में अभी जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है महलका चंदा पे। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी खातून थी जिनका पहला दीवान गालिब और मीर के बाद, गालिब और मीर से भी पहला दीवान वली दक्कनी के बाद इनका था। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए भारत की सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अब फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर भी रहे हैं। किस तरीके से स्टार्टअप्स की भूमिका या संभावनाएं भारत की फिल्म इंडस्ट्री में है, जितेंद्र मिश्रा प्रोड्यूसर हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में, उनसे हमने बातचीत किया, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम अलग अलग देशों के साथ भारत के स्टार्टअप्स किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर बातचीत। बात स्टार्टअप की हो रही है, और स्टार्टअप्स किस तरीके से काम कर रहे हैं भारत में, और भारत की कोशिश भी है कि इंडिया फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप्स आगे हैं। जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि स्टार्टअप्स को लेकर भारत किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, और कान जैसा प्लेटफॉर्म कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप्स की अगर बात किया जाए तो हमारा जो देश है ये टैलेंट का हब है, और स्टार्टअप्स के लिए तो शायद हमारा कंट्री जो है ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, जो यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फिल्म मेकर्स के लिए, फिल्म एस्पिरेंट्स के लिए एक लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ का एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है हमारे कंट्री के गवर्नमेंट से, और हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं और जो ओपिनियन मेकर्स भी हैं, जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से हम पिछले कई सालों से अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पा रहे हैं इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। फिल्मों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से भारत में फिल्मों का स्वरूप अब बदल रहा है, कान में बड़ा बोलबाला है भारत की फिल्मों का अगर देखें, और रीजनल लैंग्वेज का। आप तो फिल्मों के लिए काम भी करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, क्या लगता है आपको भारत कान में एक अलग छवि अब धीरे धीरे बनाता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले
12 साल से यहाँ पे रेगुलर आता रहता हूँ और उससे पहले शायद 16-17 साल से अपने फिल्मों के लिए और अपने काम के लिए मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में और बहुत जगह पे ट्रैवल करता आया हूँ। लेकिन पिछले कई सालों से, रिसेंट कुछ सालों में हमारा जो एक खुद का एक आइडेंटिटी डेवलप हुआ है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे। लोग हमें अलग नज़रिए से बहुत ही पॉजिटिव और बहुत हाई, मतलब एक ऊंचे दर्जे से देखते हैं। हमें एंट्री मिलती है हर जगह पे, तो ये चेंज तो बहुत आया है इस बार। एक दौर अब ये भी आ गया है कि जो आप जैसे यंगस्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और यूथ हैं, और जो एक पूरा पहले के ज़माने में जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो काफ़ी सीनियर्स हैं, वो एक जनरेशन के में जो गैप आ रहा है और उस जनरेशन गैप में स्टोरीज बदल रही हैं, कॉन्सेप्ट भी बदल रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आइडिया जा रहा है। पहले सेलुलॉइड था। जब हम लोगों ने आई एम कलाम फिल्म शूट किया था तो हमने 35 mm सेलुलॉइड पे शूट किया था 2009 में। लेकिन आज डिजिटल हो गया, तो एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। और मैं मतलब प्राउडली बोल सकता हूँ कि इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन को लेके जो इनिशिएटिव लिए गए हैं और हम टेक्निकली जो साउंड हैं उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे जो वेटरन फिल्म मेकर्स हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्में जो हैं उनके 30-40% भी कुछ बड़े जो साई-फाई फिल्म्स होते हैं उसका 60% काम जो है इंडिया में हुआ है, बेंगलोर में हुआ है या मुंबई में हुआ है। तो हमारे जो यूथ है वो शायद अभी, जैसे मैंने बोला कि हमारा ये टैलेंट हब है, हमारी कंट्री हर जगह, हर कंट्री से अभी नंबर 1 है। और ये यंगस्टर्स के साथ हमारे जो पुराने तो नहीं कह सकते, बट हाँ हमारे जो वेटरन फिल्म मेकर्स हैं, हमारे जो सीनियर फिल्म मेकर्स हैं, वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर तो उनका एनकरेजमेंट हमेशा रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दे आर एडप्टिंग द न्यू नॉर्मल ऑफ द लाइफ। आपको लगता है कि अब जिस तरीके से भारत सरकार की भी कोशिश है और इस इंडिया पवेलियन में जहाँ हम हैं वहाँ पे कई सारे सेशंस हो रहे हैं, कोऑपरेशन की बात हो रही है, कई देशों के साथ भारत ने ट्रीटी भी की है कि वहाँ के फिल्म मेकर्स, हमारे फिल्म मेकर्स आपस में काम कर सकें। ये फ़ायदा देगा, ये बढ़ावा देगा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों को, फिल्म मेकर्स को, आप जैसे लोगों को? यस, जैसे इंडिया के साथ बिकॉज हमारे जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही ओरिजिनल होता है। हमारे जो लोकेशंस होते हैं आउट ऑफ द वर्ल्ड, इतने सुंदर लोकेशंस नहीं होते हैं। एक ही कंट्री में आपको सारे तरह से, रेगिस्तान से लेके स्नो से लेके फॉरेस्ट, जंगल से लेके ऑल काइंड ऑफ लोकेशंस आपको मिलता है। तो बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में काम करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी तक 4 इंटरनेशनल को प्रोडक्शन कर लिया है। रिसेंटली एक इंडो इटालियन फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। तो उसमें ये सुनने में आया है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो इंडिया में आना चाहते हैं अगर मतलब उसमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो। और हमारा जो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस जो इंट्रोड्यूस किया है और बहुत सारे फिल्म ट्रीटी साइन किया है, बहुत सारे इंसेंटिव्स अभी लास्ट ईयर यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव अनाउंस किया है, जिसके वजह से बड़े सारे इंटरनेशनल जो फिल्म मेकर्स हैं इंडिया के साथ को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। हर बार मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो जैसे प्रोड्यूसर्स नेटवर्क का मैं मेंबर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ जब एक्सचेंज करते हैं डायलॉग, तो पता चलता है कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड दे वांट टू वर्क विथ इंडियन प्रोड्यूसर्स, दे वांट टू को प्रोड्यूस विथ इंडिया। कई सेशंस में ये भी बात हो रही है, कई स्टेट्स के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, खासकर नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं जो अपनी लोकेशंस पे बात कर रहे हैं। आप तो फिल्में बनाते हैं, भारत क्यों इंटरनेशनल मार्केट भारत आए, आपको क्यों लगता है? और किस तरीके से भारत अपने आप को जब प्रमोट कर रहा है, जो कि फिल्म मेकर होने के नाते आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल, एक तो हमारी कंट्री कॉस्ट इफेक्टिव है। जहाँ बाहर जितना किसी को स्पेंड करना पड़ता है एक फीचर फिल्म करने के लिए, उससे बहुत ही कम पैसे में हमारे वहाँ पे होता है। हमारे जो कास्ट एंड क्रू है वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं।
जैसे हमें एक लॉजिकल लेवल तक फिल्म को ले जाने के लिए जो जो एफर्ट्स देना होता है वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से देते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग खाली एक प्रोफेशनलिज्म से नहीं चलता है, उसमें कई सारे इमोशंस अटैच्ड होते हैं, उसमें एक पैशन अटैच्ड होता है। तो ये जो हमारा नेचर है एक्चुअली हम सारे कि हमारा तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वसुदेव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, तो ये हर हमारे ब्लड में है। तो हम सबको एक मानते हैं और जो बाहर से आते हैं हम उसको सर पे बिठा के करते हैं। तो उनके बाहर से अगर कोई आएगा तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाता है एक प्रोड्यूस करना। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमारे देश में मिलता है। दूसरी बात ये है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नीशियंस हैं, वो जैसे फिर से मैं रिपीट करूँगा कि हमारा देश ही टैलेंट हब है वर्ल्ड का, और सारे टैलेंट हमारे यहाँ पे भरे हुए हैं। तो उनके लिए एक ही जगह पे वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। तो डेफिनेटली वो आना चाह रहे हैं, आ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और भारत में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की अगर बात की जाए या तमाम अलग अलग देशों की फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए, वो अब भारत का रुख कर रही हैं। और भारत के प्रोड्यूसर्स का भी अब यही कहना है कि भारत क्यों एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हब साबित हो रहा है फिल्मों के निर्माण के लिए, कंटेंट के लिए। उसका वजह यही है कि भारत बहुत फ्रेंडली कंट्री है, भारत का कंटेंट बहुत रिच है, भारत की लोकेशंस बहुत रिच है, और यही कारण है कि भारत की ओर अब आकर्षण बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, कान। तो भारत एट कान में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कान की गलियों की हलचल को लेकर, और भारतीय पवेलियन में किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई ये भी आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।